Okay, so what is Spark streaming? So you now understand the basic concept behind Spark, right? So Spark also has some components. जैसे Hadoop का, we have Hive. Similarly, Spark also has several components. One of them is called Spark streaming. And that means that Spark is specifically being used to analyze or process streaming data. ठीक है, ये उसका एक कॉन्सेप्ट. In the same way, we have Spark SQL. Spark is being used to run SQL queries. Like, what is the tool for running SQL queries over Hadoop? Hive and Drill. Apache Drill, Apache Presto. These three are famous. Apache Phoenix is also one of them. Apache Phoenix. So all of these are open source options. But if I'm using Spark and I want to run SQL over the Spark data, then I can use Spark SQL. कोई मसला, Spark SQL configure करें and give it the SQL query, it will execute the SQL query for you. So Spark वाले अब उनका ज़हन ये है कि अब ecosystem आप हमारा ही इस्तेमाल करें सारा. आप Hadoop install करें, उसके ऊपर Spark install करें and then do whatever we are giving you. Don't go for any other things. So they are developing the ecosystem in that way. सही है? So and that is also very efficient and fault tolerant and very fast and effective, etc., etc. So Spark streaming is a framework for large scale stream processing. So large scale stream processing can scale to hundreds of nodes. Like Hadoop, सही है, can achieve second scale latencies. What do you mean by that? What's a latency? हाँ, lag. किस चीज का lag? हाँ, मतलब ये कि in how much time you will get the result. So whenever you have a network, we have latency because it takes time to transfer the data and it takes time to process the data. So can achieve second scale latencies. Latencies can be in several seconds or just 1 second or 2 seconds, which is very less. ठीक है? Integrates with Spark's batch and interactive processing. So Spark has two modes, batch mode and real time mode. So real time mode is Spark streaming. लेकिन इसका फायदा ये होता है कि Spark streaming के अंदर real time analysis भी मिल जाता है और batch analysis भी मिल जाता है. You have the option to get both. So ऐसी limitation नहीं रही कि as I'm analyzing real time data, now I have to create some separate thing for batch data. हाँ, ये है if the batch data is different than the real time data. कि batch data is machine learning data. Machine learning always happens on batch data. कि पूरा ट्रेनिंग डेटा का सैंपल दिया हुआ है और आप आराम से मशीन लर्निंग मॉडल चंद घंटों में लर्न करें या 2 दिन में लर्न करें. दैट इज बैच एनालिसिस. रियल टाइम एनालिसिस क्या है कि भाई स्ट्रीम आ रही है, पेशेंट वाइटल्स आ रहे हैं, फौरन एनालिसिस करके फौरन, हाँ, तो दैट इज रियल टाइम एनालिसिस. ठीक है. सो इंटीग्रेट्स विद बैच एंड इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग, provides a batch like API for implementing complex algorithms. So you can implement your own algorithms. Whatever code you want to implement, you can implement that over Spark. ठीक है. Can absorb data streams from Kafka, Flume, ZeroMQ, RabbitMQ, etc., ActiveMQ. So MQ means message queues. So message queue is one other technology for ingestion of streaming data. Like Kafka we have, so Kafka can ingest streaming data. Similarly, Flume can also do the same. And we also have these message queues. सही है. तो ये आपके पास different options आ रही हैं. So many important applications must process large streams of live data and provide results in real time. For example, social network trends. That's a real time thing because a trend is only there for a few hours. ठीक है. Website statistics, again, that is a real time scenario because you want to analyze things in real time. कि पिछले 3 घंटों में कितने लोग आए. Intrusion detection system, online fraud happens in real time, so you need to analyze in real time. ठीक है. So this you can also add e-commerce. So e-commerce is also part of the game. Requires large clusters to handle workloads. So this kind of thing will require you to have a cluster of information
with Hadoop and Spark running over it. Okay? Require latencies of just a few seconds, 2 seconds, 3 seconds, 1 second, 2 seconds. We don't have time to wait that long. कि 15 मिनट में रिजल्ट आ रहा है, we can't afford to do that. ठीक है? That's the thing. So we need a framework for building such a complex stream processing application, but what are the requirements of such a framework? That's the more important part. Framework तो बना लेंगे, लेकिन what are the characteristics of that framework जो कि उसको satisfy करना चाहिए? जैसे for example, you want to build a software, but what are the characteristics of the software? The software must be scalable to thousands of customers. ठीक है? The software must be able to respond to my queries in 5 to 10 seconds. The software should never go down. The website should never go down. तो ये requirements होती हैं, तो उसकी base पे आप बनाते हैं. It should be robust. It should be fault tolerant. So the requirements are like this. Okay, it should be scalable to large clusters. If you want to analyze data in real time, the latency should be very small. The programming model should be very simple. Don't ask me to write down the MapReduce code. ठीक है, so I just want to call a function और map हो जाए, और जो भी मैं चाहता हूँ वो मुझे बस कुछ कमांड्स में मैं आराम से कर दूं, जैसे कि हम SQL में करते हैं कि I just write a few queries and I get everything I want. I don't have to write very complicated programming code, which I have to do in the case of MapReduce. So it is not possible for the common user. Every user of big data will not know programming. So therefore it should have a simple programming model. So case study, real-time monitoring of online video metadata. HBO, ESPN, ABC, Sci-Fi. So all of these, Netflix वगैरह ये जितनी भी है, तो what they are doing is कि they are analyzing data or video feeds in real time. जी, बिल्कुल. Viewer rating data is also gathered in real time, and ratings are calculated in both batch mode and real time mode. ठीक है? So this is not easy because the data is a video feed which is primarily streaming data. Okay, and it's not easy to analyze the videos, but could be easy to analyze the viewership across the videos. के videos में viewers किस scene को ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है, और किस region से आ रहे हैं, कितनी देर के लिए वो TV, film series या drama देखा जा रहा है. All of these things have to be measured in real time, according to the type of customers वगैरह जो भी है, ठीक है. So इसके अंदर I need to have two processing stacks. First of all, I need to have a stream processing system. Obviously, I need to have a stream processing system क्योंकि मुझे stream analyze करनी है. तो stream को analyze करने के लिए मैं Hadoop तो नहीं इस्तेमाल कर सकता. I have to use Spark. Spark का भी streaming. उसके अलावा I have two other options. I have Apache Storm and I have Trident. So that all of these are stream processing. ठीक है? So there are thousands of complex KPIs on millions of video sessions. इस scale का imagine करें आप. Millions of video sessions which are running in parallel across the whole world, and there are thousands of KPIs that you have to measure in real time. तो आप सोचें कितना मुश्किल काम है, ठीक है? So requires many dozens of nodes. So at least आपको 300-400 nodes या 100-200 nodes तो आपको चाहिए. Cloud के ऊपर कर लें या. And then you also need to have a Hadoop backend for offline analysis, because this is the online part and this is the offline part. I told you there are two things: batch analysis, because if you are doing machine learning on this data, then it is batch analysis. If you are doing things in real time, then that is online analysis. So you need to have two processing stacks here. Processing के बड़े-बड़े दो monsters आपको create करने हैं, one for batch level, the other for streaming level. So that's very difficult. That's very expensive as well, because you need to have a different infrastructure there, and you need to have a probably different infrastructure there. Maybe your machine learning requirements are not that
as the real-time requirements. And you have to manage two things in parallel. ये problem है यहाँ पे कि batch mode और online mode को you have to manage that in parallel. So that is very complicated. ठीक है? So इसका जो so इसके अंदर problem क्या होगी? Twice the effort to implement any new function because I have two different things going on in parallel. Twice the number of errors to solve, twice the headache. Because this is in fact the problem of the Lambda architecture. The Lambda architecture has exactly this scenario. Okay, at the top layer we have the batch processing, at the bottom layer we have the real-time processing. जो data आता है वो gets copied in both the layers, gets processed differently in both the layers in parallel. So the architecture here is different, the architecture there is different. So I might have a cluster of 4 nodes here and a cluster of 10 nodes there. So it's not easy. मतलब requirements तो आपकी दोनों हैं. तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप इन दोनों चीजों को मर्ज करें. हम ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ले आएं which is able to handle both batch and stream processing. Why do we need to have two separate things? Big data के लिए तो ये it's becoming a hassle to manage it. It's very costly. अब GPU, if you are looking for GPU based PCs on the cloud and you want to take a GPU like 10 GPUs for 2 months, तो उसका बिल तकरीबन 10 लाख रुपए आ जाएगा. सबसे सस्ते की बात कर रहा हूं. तो इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब आपको इतनी हैवी प्रोसेसिंग करनी है तो ये भी 2-3 लाख रुपए आ जाएगा. चलो जीपीयू तो नहीं है, वो 2-3 लाख रुपए आ जाएगा 2 महीनों के अंदर, क्योंकि आप नोट्स भी तो देखें कितने ले रहे हैं आप. सही है. So that's why we need something which is integrated with batch and interactive processing. We don't want things to go separately. ठीक है. So it's scalable, latency should be very small, the programming model should be simple. I don't want to write complicated code myself, and integrated with batch and interactive processing. सही है. That is the fourth requirement that it needs to fulfill. अच्छा. Then you have something which is called stateful stream processing. So we're talking of traditional streaming systems. Traditional streaming system जो पहले streaming होती थी उसमें क्या था कि have an event driven record at a time, one record at one time. Processing model. ठीक है. Each node has a mutable state. The state changes. यानी when a node sees one data, एक reading दी उसने IoT sensor की, तो इसकी state change हो गई, उसने कुछ प्रोसेस किया और आगे भेज दिया या डिलीट कर दिया उसको, whatever. ठीक है. For each record, update state and send new records. ठीक है यार, मैंने आपको देख लिया, मैंने आपके हिसाब से अपनी स्टेट चेंज की, अब आप बाय बाय हो जाए. Now bring in the next data. Or the same happens across the whole cluster. So we have the concept of state. कि भाई state means the situation. For example, at 3:50, what is the state of this classroom that we have 5 or 6 students? And the teacher is teaching. So after 2 hours, what is going to be the state? The class will be empty. So state means the situation. So when you see the data, you do something and then delete the data, because streaming data को कितना store करेंगे? The maximum you can do is कि आप उसको MongoDB में store रखें या Hadoop में store रखें, let's say for 2 or 3 days, and then you purge it, because the data is coming in all the time. This is the reason that streaming analysis is important, because we will not be having the data always with us. For example, right now maybe 3 million people are watching movies on Netflix. So we have to analyze right now in real time के 15 मिनट में क्या हो रहा है. उसके बाद I don't care कौन देख रहा था, कितने देर के लिए देख रहा था. ठीक. So the problem is कि if the node goes down, which can happen in a Hadoop cluster, always any node can go down anytime. But Hadoop जो कि fault tolerant है, उसको फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. उसने replication की होती है. तो if the node goes down, the problem is that the state goes down. You lose the state कि मैंने क्या किया था, processing खत्म हो गई. Understand? So node down होने का it's not a problem. The problem is कि the state should not go down, but I lose the state. So if the node goes down, the state is lost, and making stateful stream processing to be fault tolerant is challenging.
क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप कहें कि भी स्टेट को रेप्लिकेट कर लो, अब डेटा इतनी तेजी से आ रहा है कि रेप्लिकेशन इज नॉट अ पॉसिबल, रेप्लिकेशन इज पॉसिबल एट द हडूप लेवल। समझ में आ रही बात की? क्योंकि द डेटा इज लाइक अ स्लीपिंग मॉन्स्टर। डेटा जो है ना, स्लीपिंग मॉन्स्टर, उसको मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ कि डेटा चल तो नहीं रहा ना, इट्स नॉट डेटा इन मोशन, इट इज डेटा एट रेस्ट। जो हडूप में डेटा है, डेटा लेक में, इट इज डेटा एट रेस्ट, इट इज नॉट रनिंग और वॉकिंग। लेकिन जो मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, द स्टेट दैट इज चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब नया डेटा आएगा स्टेट चेंज होगी, फिर स्टेट चेंज होगी। सो हाउ कैन आई मेक कॉपीज ऑफ दिस स्टेट? इन दिस वे आई हैव टू क्रिएट मिलियंस ऑफ कॉपीज इन 1 hour. So therefore he is saying कि it is not easy to make this fault tolerant. हाँ, डेटा हडूप में है, हडूप की मैं कॉपीज बना लेता हूँ, प्रोसेसिंग की मैं कॉपीज कैसे बना सकता हूँ? So the concept of the state is not very good for me. This happened in the traditional stream processing systems. जो शुरू के स्ट्रीम प्रोसेसिंग सिस्टम थे, उनमें ये प्रॉब्लम था कि वन रिकॉर्ड एट अ टाइम एंड इट इज इवेंट ड्रिवन। वो इवेंट ऑकर हुआ, एक रिकॉर्ड एट टाइम देखा, स्टेट अपडेट की, रिकॉर्ड डिलीट किया, दूसरा रिकॉर्ड देखा। सही है? Now existing systems, what do they do? The Storm replace the record if not processed by a node. अगर एक नोड जो है वो लेट्स से कि डाउन हो गया, तो पता चला जी वो तो मेरा जो डेटा था प्रोसेस हुआ ही नहीं, तो रिप्ले कर दो, किसी और नोड पे रिप्ले कर दो उसको। ये फॉल्ट टॉलरेंट की एक वो है, रेप्लिकेशन नहीं हो रही, तो डेटा को तो किसी और नोड पे चला दो, रिप्ले कर दो उस नोड पे, नहीं रिप्ले होगा तो किसी और जगह पे प्ले कर दो जाके। ठीक है? Processes each record at least once. That is the guarantee that Storm gives. कि your record will be processed. एक दफा तो प्रोसेस होगा। ठीक है? Many update mutable state twice. ये भी मुमकिन है कि एक स्टेट को एक डेटा दो दफा अपडेट कर दो। This is sort of a limitation. ठीक है? Mutable state can be lost due to a failure. तो इसमें स्ट्रॉन्ग में वही प्रॉब्लम है कि इट कैन बी लॉस्ट ड्यू टू फेलियर। ठीक है? सो ये उसका है। बाकी ट्राइडेंट में क्या है कि यूज ट्रांजैक्शंस टू अपडेट द स्टेट, प्रोसेसेस ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस। तो देयर इज जस्ट वन टाइम गारंटी, एक दफा मैं करूंगा। यहाँ पे वो कहता है कि एटलीस्ट वंस मैं करूंगा रिकॉर्ड। तो अगर कहीं नहीं होगा तो मैं कहीं और उसको चला के दूंगा, दो दफा भी करना पड़े मैं दो दफा भी कर दूंगा। दैट इज व्हाट इज सेइंग कि the state for one data can be updated twice. For some reason इस तरह हो सकता है। Per state transaction updates are slower. तो इसमें थोड़ा सा स्पीड का प्रॉब्लम आ जाता है। सही है? अब आगे क्या है? So the system that we are designing should be efficient and fault tolerance in stateful computations. कि if the node goes down, the state should not be deleted. सही है? तो अब ये हमारी 5 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक स्ट्रीम प्रोसेसिंग सिस्टम को पूरी करनी चाहिए। सही है? समझ में आ गई बात की? ये तो आसान है ना, ये तीनों तो, बिकॉज यहाँ पर दिस मीन्स के आई डोंट वांट टू राइट वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैप, जो मुझे मैप रिड्यूस में करना पड़ता है। सही है? आई डोंट वांट टू डू दैट, जस्ट गिव मी अ क्वेरी जिससे मेरी सारी मैप रिड्यूस के काम बन जाए। एसक्यूएल की तरह की कोई क्वेरी लैंग्वेज मुझे दे दे, मैं उसमें आराम से अपना काम कर सकूं। ठीक है? क्लियर हो रही बात? सो स्पार्क स्ट्रीमिंग इज द processing framework which can manage all these requirements better than the other ones. ठीक है? तो run a streaming computation as a series of very small deterministic batch jobs. अब देखें, डेफिनेशन से आपको पता चल गया कि मसला कैसे हल किया। कि स्ट्रीम को just break down the stream into very very small parts and then each part को treat that as a batch data, execute that over MapReduce. बैच डेटा तो मैप रिड्यूस पे जा सकता है, समझ आ रही बात की? और लेकिन वो चूंकि वो डेटा इतना छोटा कर दिया है कि मैप रिड्यूस कर यूं करके एग्जीक्यूट हो जाए। इट्स नॉट गोइंग टू टेक, आप मैप रिड्यूस को 1 टेराबाइट ऑफ डेटा दे रहे हैं कि चलो भाई टोटल निकाल के लिया, वो तो लेगा फिर 1 घंटा। सही है? इन दिस केस it has broken down the stream into so small portions, every portion is treated as a batch data.
बैच डेटा को रीड करता है, वो छोटा सा बैच है, बहुत छोटा सा मिनी बैच आप कह लें, और वो फिर आप अपना जो स्पार्क है उसको वो यूं करके उसका when you break it down, then you form the RDD or the data frame for that and distribute that in the RAM of the node and then process that using MapReduce code. So पहले ये था ना कि आप डेटा को ब्रेक किया, put the data in the form of RDD or data frame or data set if you want, put that in the RAM, distribute that in the RAM, and then execute whatever you want to execute through the MapReduce paradigm. But that will be extremely efficient. सही है, क्लियर हो रही बात नहीं ये? जी सर, जो इंटरैक्टिव मोड आपने डायग्राम दिखाया था जी इसका स्पार्क स्ट्रीमिंग का, तो एक तरह तो हमने क्वेरीज रन कर करके लाइव स्ट्रीमिंग पे डेटा को एनालाइज कर लिया, और दूसरा जब वो डिस्क में स्टोर हुआ वहां से हमने बैच एनालिसिस लाइक लेटर मशीन लर्निंग के लिए वहां से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ, देखिए बैच के लिए I'm not, if I want to do machine learning, I'm not going to use stream processing. Spark streaming मैं use नहीं करूँगा. I will use Spark MLlib. MLlib is the machine learning library for Spark. हम इसके experiments वगैरह करेंगे सारे इंशाल्लाह, ठीक है? MLlib is the machine learning library for Spark. It has nothing to do with streaming. So data एक बार Hadoop पे गया, like live streaming का data है, batch में गया, data store हो गया Hadoop पे, वहाँ से हम MLlib से यूज करके उसकी बाद में देखिए स्ट्रीम जो डेटा स्ट्रीम आ रही है ना, इट इज अनलाइकली कि मैं उसको मशीन लर्निंग में इस्तेमाल करूं. मशीन लर्निंग में आई हैव डेटा व्हिच इज मोर स्टेबल, लाइक कस्टमर डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा व्हिच कम्स लाइक वंस अ डे. यहाँ तो हम IoT की बात करें उसमें, हाँ देखें, इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट द टाइम सीरीज के IoT की स्ट्रीम आ रही है, हमने रियल टाइम में उसके कुछ चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, उसके लिए यू विल यूज स्पार्क स्ट्रीमिंग. देयर इज नो सच थिंग एज अ रियल टाइम मशीन लर्निंग मॉडल. तो द डेटा दैट इज कमिंग, दैट इज बीइंग ब्रोकन अप हियर, so that data will be recorded in Hadoop. हम Hadoop में डेटा स्टोर कर रहे हैं, एंड डेटा लेक का आर्किटेक्चर तो हमारे हाथ में, डेटा लेक का आर्किटेक्चर हमारे हाथ में. तो अगर हमने वो स्ट्रीमिंग डेटा को मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल करना है, I will configure the lake to store that data. इससे पहले आपने कहा था किसी साइट्स के ऊपर कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का हम दो जगह पे डेटा को सेव करके जी प्रोसेस करेंगे. जी इन दैट केस डेटा आएगा, बैचेस में जाएगा, एक स्टोर हो जाएगा और एक से हम अपना डिसीजन ले रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे. जी इस केस में कॉम्बिनेशन इस तरह हो रहा है कि आई कैन इंक्रीज द बैच साइज. अभी तो बैच साइज छोटा रखा, बैच साइज हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, तो इट विल सिमुलेट बैच प्रोसेसिंग. I don't need to have a separate infrastructure for batch processing. मतलब मैं अगर batch size बड़ा कर देता हूँ, तो I will have more data. It might take some more time, but definitely it will be faster than the traditional Hadoop. तो कहने का मकसद ये है कि मुमकिन ये है कि अगर if you are saying कि I want to merge streaming and machine learning, तो I will take the stream, I will break that up, do some real-time analysis, and then analyze the stream again. And break that apart according to the machine learning requirement that I have, और उसको फिर हम स्टोर कर दें. तो स्ट्रीमिंग डेटा जो मैं जो यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ वो सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए लेकर आ रहा हूँ, जो मुझे रियल टाइम में चाहिए. उस नोड को दोबारा प्ले करके मशीन लर्निंग की डेटा सेव कर सकती हूँ. हाँ, जो काफका से डेटा आ रहा है ना, आई माइट चूज टू जो काफका डेटा है इमीडिएटली थ्रो दैट इन MongoDB एंड देन गिव इट टू द स्पार्क स्ट्रीमिंग. या मैं कह सकता हूँ नहीं भी मुझे तो I want to see the BI फौरन, तो काफका से फौरन स्पार्क स्ट्रीमिंग को दो, फौरन रिजल्ट जनरेट करो जो कि हर 15 सेकंड के बाद चार्ट अपडेट हो रहा हो. उसके बाद डेटा उठा के फेंक दो MongoDB के अंदर, क्योंकि मैंने उसको बाद में इस्तेमाल करना है फोरकास्टिंग के लिए. सही है, लेकिन उसमें भी देखें, इवन इफ यू आर डूइंग टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, जो कि अभी शायद आप लोगों को पता नहीं है, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में द डिफरेंस इन टाइम इज नॉट 15 सेकेंड्स कि 15 सेकंड के बाद मैं प्रेडिक्शन करूं. वो इट्स नॉट दैट इजी. डेली कर सकते हैं, आवरली कर सकते हैं, 10 मिनटली कर सकते हैं, 30 मिनटली कर सकते हैं. दैट मेक्स इट मोर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट टू प्रेडिक्ट. इफ यू आर मेकिंग प्रेडिक्शन एट 15 सेकंड, तो नहीं, मिनट इज द मिनिमम. मिनट इज द मिनिमम. स्टॉक्स में भी मिनट मिनिमम है जिस पे जरा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है. 15 सेकंड के ऊपर स्टॉक कैसे फोरकास्ट करेंगे आप भाई?
मिनट के ऊपर भी आपको 85% भी आ जाए ना रिजल्ट, तो यू आर डूइंग गुड। यानी कि वो जब MongoDB में जाएगा वहां से हम अपना मशीन लर्निंग वाला पूरा प्रोसेस करके prediction हाँ, कर वो एक डिफरेंट पाइपलाइन बनेगी ना, वो एक डिफरेंट पाइप, वो तो ML लिब में जाएगा वो सब कुछ, सही है। So chop up the live stream into batches of X seconds. 2 second, 3 second, 4 second batch. Spark treats each batch of data as RDDs and processes them using RDD operations. So each batch becomes a data frame or an RDD. It gets distributed in the RAM of different nodes and then is processed using MapReduce code. ठीक है? Finally, the processed results of the RDD operations are returned in batches. तो वो जब Spark execute करवा लेता है, तो वो फिर आप batches का result आपको टुकड़ों में साथ मिलता रहता है। So batch sizes are as low as half a second, latency approximately equal to 1 second. It is very fast, ठीक है? Potential for combining batch processing and streaming processing in the same system. ठीक है, तो ये अभी हमने उसका आर्किटेक्चर देख लिया है। So for example, get the hashtags from आजकल बड़ी एप्लीकेशन हुई, मैं इसको अभी बना रहा हूँ तो it might take some time, तो फिर उसको डॉकर के ऊपर हम रन करेंगे इंशाल्लाह, सही है। So dstream is a sequence of RDD representing a stream of data. So dstream is the class जो कि RDD जो stream आ रही है तो उसको मैं as a dstream represent करूंगा within Spark, ठीक है। तो ये आपके Twitter की streaming API है, so I can get the data from Twitter in real time. So Twitter API becomes my source of data. अब मैं चाहूँ तो उसको Kafka के थ्रू ingest कर लूँ, ठीक है, डायरेक्ट, या चाहूँ तो कोड में डायरेक्टली Twitter API यूज करके टैग्स को गेट करना शुरू कर दूँ। This is my own choice. तो API ट्विटर से कनेक्टेड है, ट्विटर सर्वर से। आप API को ऑर्डर करेंगे कोड के अंदर ही, वो आपको रन टाइम पर डेटा निकाल के ला देगा, आपको काफका की जरूरत नहीं है। अगर आपने यूज करना है तो आप काफका यूज कर लें। इफ यू वांट टू ब्रेक योर डेटा इनटू टॉपिक्स एंड डिफरेंट पार्टीशंस, देन यू कैन यूज काफका, वो आप कर लें। पब सब्सक्राइब मॉडल पे जाना है तो वो यू कैन डू दैट, लेकिन चूंकि हैशटैग्स को किसने सब्सक्राइब करना है, दिस इज नॉट समथिंग कि जो जिसको मैं सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, मतलब आई एम जस्ट डूइंग माय ओन थिंग, राइट। सब्सक्रिप्शन मॉडल तो उस वक्त तुक बनती है जब in the different parts of the company different people subscribe to different things. उस वक्त पब सब मॉडल की तुक बनती है जो कि काफका का है। काफका में पब सब मॉडल ना, पब्लिश एंड सब्सक्राइब, पब्लिश एंड सब्सक्राइब। If you have different subscribers and different publishers, then it is more convenient for us to implement a pub sub model. But if I am just doing my own analysis on one PC, उसमें pub sub model को मैंने क्या करना है, सही है ना। तो इतना उसका तुक नहीं बनता, तो मैं डायरेक्टली कोड के अंदर कनेक्टर कॉन्फ़िगर करके डेटा को गेट कर सकता हूँ in different intervals. So I'm getting the hashtags here. So hashtags are implemented as the tweets are implemented as these streams. So I broke them down into different batches. So they are stored in memory as an RDD, immutable and distributed. RDD को जब एक दफा बन गया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, and it is also distributed over the cluster. That's the processing unit आप कह लें, अब प्रोसेसिंग वर्क जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। सो आई मेक अ न्यू डी स्ट्रीम, पहले तो ट्वीट साइन, पहले मैंने ट्वीट गेट किया, देखिए ना, दिस इज द कोड। वो कहते हैं ना कि सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल लिखा था ना, सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल, तो ये सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल है। पहले सिर्फ डॉट डॉट करके ये कॉन्टेक्स्ट है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट मींस द स्पार्क एप्लीकेशन आपने इनिशियलाइज की है, तो सबसे पहले स्पार्क यूज करने के लिए कॉन्टेक्स्ट आप कॉन्फ़िगर करते हैं, और कॉन्टेक्स्ट के बाद आप डॉट डॉट करके उसके फंक्शन कॉल, तो ट्विटर स्ट्रीम का आप वो बता दें यूजर नेम पासवर्ड, वो वहां से आपको डेटा कर। अब आपने जब ट्वीट्स गेट कर ली, ट्वीट्स गेट करने के बाद आप उसके हैशटैग निकाल रहे हैं, हैशटैग निकालने के लिए फंक्शन बना हुआ है। अब आपको कोई फंक्शन लिखना नहीं है, सिर्फ डॉट डॉट करके आप स्टेटस गेट टैग स्टेटस ये कर लेगा। तो नए डी स्ट्रीम बनाई आपने, ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफाई डेटा इन वन डी स्ट्रीम टू क्रिएट अदर डी स्ट्रीम। सो आई एम क्रिएटिंग, I had one batch of data, stream of data broken down into RDDs. From that I created another one. ये देख रहे हैं आप, tweets.fatmap. Tweets ये D stream थी और इसका मैंने dot function call किया तो वो। So in this way I can create RDDs from previous RDDs. सही है, समझ में आ गई बात की? So now what we have, so now these are the hashtags are here. New RDDs created for every batch. Every time I get a batch of tweets, I create new RDDs to create the hash maps for those hashtags for those tweets. ठीक है,
and then I can save as out to push data to external stage. I can save that to hard disk. ये Hadoop में जा रहा है. ये जो हम बात कर रहे थे भी ना कि हैशटैग्स अब मैंने हो सकता है मैंने हैशटैग किसी टेक्सचुअल एनालिसिस में इस्तेमाल करने हो, किसी डीप लर्निंग एप्लीकेशन में यूज करने हो, तो ये फिर मेरी मर्जी, मोंगो में डाल दें, हडूप पे डाल दें, आपकी मर्जी है, एचडीएफएस पे डाल दें, आप इसको सेव कर दें. यहाँ पे आप हाइव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइव क्वेरी कॉल करें और इसको डाल दें किसी टेबल में. एचडीएफएस में तो वो जाना ही है उसने, लेकिन वो टेबल्स के थ्रू करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी. ठीक है, तो एवरी बैच इज सेव्ड टू एचडीएफएस. So if you want to do that in Scala, the Scala language is pretty much the same. Okay, and if you want to do that in Java, so there's not much difference. Python, Java, Scala, Python, Java, Scala, तो Hadoop की और Spark की प्रोग्रामिंग आप इन तीनों पे कर सकते हैं. So इसमें क्या हो रहा है कि you got the tweets here. Input data replicated in memory. तो fault tolerant Hadoop is fault tolerant और Hadoop replicates. ये तो आपको पता ही है ना, Hadoop पे replication होती है. Whatever is stored on the nodes, it gets distributed, copied. उसकी कम से कम 3 कॉपीज बनती हैं by default. ठीक है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं. इसी तरह जो ट्वीट्स आ रही हैं, जो आपने हैशटैग्स निकालने हैं, वो सारे के सारे जो भी डी स्ट्रीम बनेगी, it will get replicated in memory. Fault tolerance. ठीक है, और if some node goes down, then you can just recompute the computation. तो वही Hadoop वाला ही मॉडल है. ठीक है. So RDTs remember the sequence of operations that created it from the original fault-tolerant input data. Batches of input data are replicated in memory of multiple worker nodes, therefore fault-tolerant. Data loss due to worker failure can be recomputed from input data. Simple as that. ठीक है, तो ये वही वाला concept है कि so sequence of RDTs representing a stream of data. You can take the data from Twitter, HDFS, Kafka, Flume, ZeroMQ, Arca Actor, TCP sockets. कहीं से भी स्ट्रीमिंग डेटा आप उठा सकते हैं. ऑल ऑफ दीज आर इंजेक्शन मैकेनिज्म्स टू गेट द स्ट्रीमिंग डेटा. जैसे आईओटी के लिए प्रॉब्ली हम काफका या फ्लूम ही इस्तेमाल करेंगे. फ्लूम आप यूज करेंगे ई कॉमर्स के लिए क्योंकि ये लॉग्स में आता है, इट गेट्स द लॉग्स. लॉग डेटा के लिए दिस इज मच बेटर फ्लूम, तो वो आप उसको इस्तेमाल कर लें. यू कैन डू डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस कि मॉडिफ, जैसे अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन की कि गेट द हैशटैग्स फ्रॉम द ट्विटर डेटा, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. सो यू कैन डू लाइक मैप, काउंट बाय वैल्यू, रिड्यूस, जॉइन, विंडो, काउंट बाय वैल्यू एंड विंडो. सो दीस आर द सम, देयर आर सम स्टैंडर्ड ऑपरेशंस. अब आपको कोड नहीं लिखना है, फंक्शन कॉल करना है. अपने भी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, वो मतलब ऑब्वियसली वो तो आपको करने पड़ेंगे. यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शंस एज वेल, बट द बेसिक फंक्शंस आर ऑल इंप्लीमेंटेड. तो कोई 2 वेरिएबल्स को सम करने के लिए आपको फंक्शन ही लिखना पड़ेगा स्पार्क के अंदर. ठीक है, देन यू हैव दी स्टेटफुल ऑपरेशन जिसमें स्टेट आपको कायम रखनी पड़ती है. जैसे विंडो है, तो विंडो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि व्हेनेवर यू हैव द स्ट्रीमिंग डेटा, सो द स्ट्रीम इज कमिंग कंटिन्यूअसली. ठीक है, कि यहां से लेके यहां तक स्ट्रीम कंटिन्यूअसली आ रही है. तो हाउ डू आई एक्चुअली मैनेज इट? So I manage it through the concept of window. कि यार, let us take a window of size 3. I'm going to take 3 elements, analyze them through RDT, and then I'm going to move the window forward. So then I will take the next 3 elements. Then I will take the next 3 elements. So I define a window. क्योंकि stream तो एक चलती जा रही ना, मतलब I can't, there is no starting point, there is no ending point. तो analyze मैं कैसे करूँगा? तो I define a window. So similarly, you can define a window here. And you can say count in the window, total in the window, etc. ठीक है. Output operations, you can save everything to HDFS, which is the default behavior in data lakes, and do anything with each batch of results. There's a lot of flexibility here. ठीक है. So for example, count the hashtags. So you got this stream of tweets, you created another stream of hashtags, and then you ran this function, the map reduce function, to count the tags in each window. हर विंडो में टैग्स कितने हैं, फिर बाकी सब विंडोज के रिजल्ट कंबाइन करके टोटल टैग्स निकाल लेंगे. You can see that the code is map reduce, but you just have to call the dot map function, dot reduce by key function, and बस आपको बताना पड़ेगा अभी टोटल करना है विंडो के हिसाब से. एक कमांड या 2 कमांड से पता चल जाएगा, you will be able to do it. सही है.
ये देखें ना यहाँ पे क्या हो रहा है, टैग काउंट्स, cat tag is 10, dog 25. So ये तो it's all being totaled up like this over different time stamps. So for example, if I get the cat here as well as the cat here, then what happens? T plus T पे आया cat और window T plus 2 पर भी cat आया, तो फिर क्या किस तरह टोटल करेंगे इसको? How will you manage that over the cluster? Yes, so it will be shuffled. कि cat pairs will all be going to one node. Shuffle करके all the cat pair, तो shuffle का मतलब ये क्या, moving across the nodes, right? तो all the cat pairs will go to one single node. वो स्पार खुद भेजेगा उसको, वो तो मैप रेड्यूस भेजेगा ना, ठीक है? तो जल्दी क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो छोटी सी एक चीज है बस, हाँ, shuffle and sorting, ठीक है? So here you can define the window. You see hashtag window 10 मिनट की विंडो है, कितने सेकंड, 10 मिनट 1 सेकंड की विंडो है, डॉट काउंट बाय वैल्यू. ये दिस इज द सिंगल कमांड जो कि हर पॉसिबल हैशटैग का टोटल निकाल के आपको दे देगी. It define a window over this hashtags dstream. Define a window over this hashtags जो कि 10 मिनट की विंडो है और 1 सेकंड की, ठीक है? स्लाइडिंग विंडो, विंडो लेंथ, स्लाइडिंग इंटरवल. अच्छा, 10 मिनट की विंडो है और स्लाइडिंग इंटरवल है, 1-1 सेकंड आप आगे जाएंगे उसमें. सो टोटल डेटा इज 10 मिनट्स एंड 1-1 सेकंड के ऊपर विंडो आगे जाती रहेगी. सही है? ये 10 मिनट्स, हाँ, 10 मिनट तक आप 1-1 सेकंड आगे जाते रहेंगे. ये विंडो इस तरह स्लाइड कर रही है क्योंकि स्ट्रीम के ऊपर स्लाइड करेंगे, स्ट्रीम तो आती जा रही है, तो आपने उसके ऊपर एक विंडो फिट कर दी. अब आप उसको स्लाइड कर रहे हैं, डेटा चेंज होता जा रहा है. अब विंडो का साइज क्या है यार, ये नहीं समझ में आ रहा है. एक डिफॉल्ट विंडो साइज होगा, उन्होंने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया. नहीं, not the data storage capacity. Look, the hashtag data is coming like this. Someone took cat. Hash cat, exactly. Then someone said hash dog, hash cat again, hash horse, or hash I don't know, Pakistan, hash India. Hash India. I mean, so all of these tags are coming. Now let's say I define a window of size 2. तो ये अब इसमें काउंट करें, cat 1, dog 1. Now a slide ahead 1 second. मैंने my interval is 1 second. तो 1 second means कि 1-1 सेकंड में मुझे नया हैशटैग मिल रहा है. तो now my window is this dog cat. अब क्या हो गया? अब बेसिकली इसका काउंट मैं दोबारा नहीं करूंगा, इसका काउंट मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि तो ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूँ. तो आई एम डूइंग विद इट. तो आइडियली तो आप विंडो साइज 1 रखें. इस केस में विंडो साइज 1 रखेंगे तो इट विल बी इजी. तो स्लाइड करते जाएं 10 मिनट तक और कर लें. अब ये भी देखें, पता चला कि आपको टाइम भी एक लिमिट देनी पड़ेगी. ये तो नहीं हो सकता ना कि आप 10 घंटे तक करते, 10 घंटे में तो स्ट्रीम की वो अहमियत ही खत्म हो जाएगी. 10 घंटे तो बहुत ज्यादा है. तो 10 मिनट हमारा फ्रेश पीरियड है. जैसे सब्जी कितनी देर फ्रेश रहेगी? 10 मिनट फ्रेश है, स्ट्रीम 10 मिनट तक फ्रेश है. जो भी चीज 10 मिनट में नजर आती है वो उठा के ये पे फेंक दो. सही है? क्लियर हो रही बात? सो यू हैव टू डिफाइन दिस इंटरवल एज वेल कि 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, चलो आप उससे कर लें. 15 मिनट के बाद स्ट्रीम की फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी. जैसे एक चीज, वो समोसे फ्रेश निकल रहे होते हैं ना, ठीक है, तो उसी वक्त खाने का मजा आता है, वरना तो उसकी वैल्यू खत्म है ना. ठीक है, ये वो वाली एग्जांपल इसकी तरह की आप ले लीजिए. So in this case, you see that you have to subtract. If the window is more than 1, then you have to delete some data from that. अगर आप काउंट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई कि cat dog with cat 1 time, dog 2 time. If I slide the window 1 second पे, dog will come again, but I will not count it again because I've already counted that. तो ये वो उस तरह करके बता रहे हैं कि this does happen by default. You count over all the data in the window and then you subtract the data which has been already seen. That is all that they're telling us. ठीक है? So technique to incrementally compute the count generalizes to many reduced separations.
Need a function to inverse, reduce, subtract for counting. तो ये आप अपना function आप लिख सकते हैं. Could have implemented counting as hashtag or reduce by key and window. So you can have a key here. All the pairs that you are looking at, उसकी को key define कर ले, and then you reduce by key. But every single word can have its own key. Every single word becomes a key. Every unique word becomes a key. तो उसके हिसाब से आप reduce करें. That is the default operation. तो ये उसकी basically थोड़ा सा डिटेल में बात करें कि you can create such a function जो कि ये subtract आपको करके दे दे. ये this is not the, I don't think this is the default behavior, but आप ऐसा function उसमें create कर सकते हैं. तो ये I mean this is something like this. तो इसी तरह tag के counts आप जैसे जैसे टाइम स्टैम्प गुजरता जा रहा है तो आप टैग के जो है ना वो काउंट्स आप साथ साथ करते रहेंगे. तो स्टेट डेटा इज नॉट लॉस्ट इवन इफ अ वर्कर नोड डाइज. व्हाई? बिकॉज वी आर डूइंग फॉल्ट टॉलरेंस. ठीक है. डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ योर रिजल्ट. एग्जैक्टली वन सिमेंटिक्स टू ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस. नो डबल काउंटिंग. देयर इज नो डबल काउंटिंग के भाई वो तो क्योंकि हमने वो देख लिया ना, वो माइनस कर देगा उसको. एंड एग्जैक्टली वन सिमेंटिक्स जैसे ट्राइडेंट के अंदर है कि एक दफा बस आपका डेटा प्रोसेस होगा. एग्जैक्टली वंस. सो अदर इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस, मेंटेनिंग आर्बिट्रेरी स्टेट. मतलब टेम्पररी स्टेट. आर्बिट्रेरी मींस के फॉर एनी एड हॉक रिक्वायरमेंट जो कि आपकी आ सकती है तो अपनी स्टेट क्रिएट कर सकते हैं. And then track the sessions, maintain per user mood as state and update it with his or her tweets. Maintain the per user mood as the state. Okay, what do you think is the sentiment of the user? That can become the state, and then you can update the sentiment with the tweets. Yeah, आजकल sentiment analysis का आपने नाम बहुत सुना होगा कि users का क्या sentiment है, are they angry or they happy or they satisfied, blah 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 blah. तो update state by key. You can use this update mood tweet. तो sentiment analysis के built-in functions हैं, वो आप करके देख सकते हैं. ठीक है. Do any arbitrary spark RDD computation within D stream. तो any requirement that you have for processing the, ये चीज हमें देखनी होगी कि इसके रिजल्ट्स को BI के साथ कैसे इनकॉर्पोरेट करना है. क्योंकि जो BI के जो टूल्स हैं they are like separate tools. So can we connect the Spark streaming application to Power BI or not? Power BI से हम Spark streaming application connect कर सकते हैं जो कि results directly वहाँ पे फेंक के regularly update करता रहे. Typically you do develop your own softwares for that, जो कि secured अपना input data से connect करेंगे and then you can just क्या कहते हैं get the data on the chart. तो Python में अपने dashboards बनाने पड़ेंगे in the whole application. It's a complete application which is taking the data and outputting the data on the charts. लेकिन Power BI के साथ ये किस तरह incorporate होगा वो Azure के cloud पे तो वो कर देंगे क्योंकि वो तो Microsoft का अपना product है. क्योंकि Azure का उन्होंने IoT का कोई infrastructure बनाया होगा या streaming data का infrastructure बनाया होगा, HD Insight के नाम से है. तो उसमें streaming data आएगा और Azure पे वो तो उन्होंने खुद connect किया होगा ना. लेकिन हम लोग किस तरह करेंगे? अगर हम इस PC पे Hadoop चलाते हैं, Spark चलाते हैं, streaming चलाते हैं, तो can we connect the Power BI here directly to the Spark streaming application? That is the question. I don't think so. That's easy job. Okay. So just join the incoming tweets with a spam file to filter out the bad tweets. कौन सी spam? कुछ spam tweets भी होती हैं. तो spam tweets के लिए आप क्या करें कि जो incoming tweets का आपने जो D stream बनाया है, उसको आप एक spam file के साथ join कर दें. तो वो फिल्टर आउट कर देगा बैड ट्वीट्स को. तो उसके लिए आप ये डॉट जॉइन फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं. स्पैम HDFS फाइल डॉट फिल्टर ब्ला ब्ला ब्ला. तो अब ये नहीं, दे आर कीपिंग ऑन एडिंग द डिफरेंट फंक्शंस फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन. तो आपका काम अब आसान से आसान होता जा रहा है. समझ में आ रही बात की? ये परफॉर्मेंस इज प्रीटी गुड. grep is the search string search mechanism for Linux. You can search for strings using grep. And word count is word count. तो grep में आप देख रहे हैं कि number of nodes बढ़ा रहे हैं तो cluster throughput gigabytes per second. So it can process keeps on increasing with increasing number of clusters. So I mean 7 gigabytes per second if you have 100 nodes. That's a lot of data. 7 gigabytes per second.
that can crunch a lot of data. So this is tested with 100 streams of data on 100 elastic compute 2 instances with 4 cores each. So 100 आपके पास cloud के instances हैं Amazon के ऊपर, 100 streams of data है, that means a lot of data, can process 6 gigabyte per second or 60 million records per second of data on 100 nodes at sub-second latency. तो ये तो यानी आपका बहुत ज्यादा बड़ा मसला हल हो गया. वर्ड काउंट के अंदर भी आप देख रहे हैं कि द परफॉर्मेंस इज तकरीबन सेम. तो GRAP चूंकि एक बच्चों वाली चीज है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन से आपकी वो मैचिंग करता है, और वर्ड काउंट इज अ बिट मोर इंटेंसिव, तो इसलिए उसका जरा ये 3 हो गया, वहां पे वो 5-6 पे पहुंचा हुआ है. ठीक है. सो हायर थ्रूपुट देन स्ट्रॉम, ये स्ट्रॉम के साथ कंपैरिजन है. तो ऑन दी रिकॉर्ड साइज 100 बाइट्स, you can see there's no comparison between Storm and Spark, and similarly the same kind of behavior can also be seen on word count. So here is just one application. So Spark streaming 670K records per second per node and 115K records per second per node. जी. Storm is something which Twitter itself uses. Apache Storm is the software जो कि Twitter खुद इस्तेमाल कर रहा है. ठीक है. Apache S4 7.5K, तो उसका तो यानी कोई कंपैरिजन नहीं. Apache SK तो आ ही नहीं रहा उसके अंदर. अच्छा, ये उन्होंने एक सिमुलेट करके देखा कि what if I delete a node suddenly, तो रिकवरी टाइम इज जस्ट 1 सेकेंड. स्पार्क स्ट्रीमिंग में रिकवरी टाइम इज जस्ट 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड के अंदर उन्होंने स्लाइडिंग वर्ड काउंट ऑन 10 नोड्स विद 30 सेकंड चेक पॉइंट इंटरवल्स. सो हियर द फेलियर हैपेंस. सो 1 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लेवल पे जस्ट हाफ अ मिनट recovers from within 1 second. I don't know how this recovers. Interval processing time. So this is the red area here. ये बता सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, so I think for 30 seconds we have the failure, and then we can just recover from that failure within 30 seconds. Real-time monitoring of video metadata for Conviva achieved 1 to 2 second latency, millions of video sessions processed, scales linear with cluster size. So number of nodes इनके बढ़ते जा रहे हैं, so active sessions millions, so it is very scalable. Millions of active, 4 million users are watching, and we're just using 60 PCs. So it's a lot of money making thing here. Mobile Millennium project traffic transit time estimation using online machine learning on GPS observations. GPS observations में you get the traffic data, उनका transit time जो है. We want to predict the traffic transit time. That's forecasting problem. That's not forecasting. वो तो satellite से information पकड़ के आपको बता देते हैं. सर मैंने सारा पर्टिकुलर ऑर्डर जिनका डेटा खुला हुआ होता है ना ट्रैफिक में, तो वो शेयर कर दो ताकि ट्रैफिक जैम. जैसे ट्रैफिक जैम का मेरे से पता चलता है, लोग का मोबाइल होता है, उनका डेटा बताओ. वो प्रेडिक्शन तो नहीं है, वो तो सिर्फ स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन है. तो हमें ना रियल टाइम पता चलना है वो लोगों के ना मोबाइल डेटा से. हाँ, तो वो ठीक है, वो जीपीएस इंफॉर्मेशन से गेट करे ना, यही लिखा हुआ है यहाँ पे. दैट्स ठीक है. तो मार्कov chain Monte Carlo simulations on GPS, this is in fact a technique for machine learning जो कि आमतौर पे पढ़ाई नहीं जाती. ये मैं खुद अभी पढ़ा रहा हूँ पहली दफा. This is called Bayesian analysis, MCMC. So this can be used to approximate the posterior distribution or the predicted probabilities आप कह रहे हैं of different classes. ये Bayesian approach है which is based on sampling and Markov chain. ठीक है. तो एक तो वो बेस, आप नाइव बेस तो पढ़ेंगे, आप नाइव बेस पढ़ लिया आप लोगों ने मशीन लर्निंग में. नाइव बेस एल्गोरिथम इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वन. तो ये भी बेसियन मॉडल पे ही है और थोड़ा सा मुश्किल है. तो बहरहाल इन्होंने फिलहाल ये जो एस्टिमेशन ऑनलाइन मशीन लर्निंग की है वो MCMC से की है.
क्योंकि इसके अंदर ऑनलाइन मशीन लर्निंग करना शायद आसान है, ठीक है। वेरी CPU इंटेंसिव, रिक्वायर्स डजन्स ऑफ मशीन्स फॉर इक्वल कंप्यूटेशन स्केल लिनियर विद क्लस्टर साइज, ठीक है। मोबाइल मिलेनियम प्रोजेक्ट इसका नाम है। वन स्टैक टू रूल देम ऑल। So I have stream processing, I have ad hoc queries, I have batch processing, and I don't know Spark क्या है यार? देखें जरा Spark Shark देखें गूगल पे, ये नई नई चीजें आती रहती हैं। So it's the simple save as Hadoop files, 2 file flat map save as Hadoop file. गेमिंग के लिए कुछ उनका वो ग्राफ तो नहीं, ग्राफ तो उनका ग्राफ X है। Apache Shark, what is that? Shark is a new data analysis system that manages query processing with complex analytics on large clusters. Is it part of the Spark ecosystem? Sir, Apache Spark. Apache, अच्छा ये होगा, ये Presto Sesto टाइप का होगा। I don't know, इसको मैं देखता हूँ। वैसे Spark का तो अपना Spark SQL भी है। Spark SQL के अंदर है। हाँ तो वो तो आते रहेगा, 15 का तो चीजें चलती रहेंगी। So if you want to use Spark in Python, then you have to use PySpark. So explore data interactively using Spark Shell, PySpark to identify the problems. So that can be done through using the Spark Shell. So ये Scala में you can have this code. ये code would तो मैं आपको दूंगा बाद में। Use same code in Spark standalone programs to identify problems in production logs. Use similar code in Spark streaming to identify problems in live log streams. So this is the streaming context that you create for Spark streaming. So you get the data from the Kafka stream. ये देखें ये sc.kafka stream. तो Kafka configure किया हुआ, तो Kafka से आप आराम से एक फंक्शन के जरिए डेटा गेट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप? And then you can do anything you want with the data. In this case क्या है, प्रोडक्शन लॉग्स में ये लाइव डेटा है, ये प्रोडक्शन लॉग्स का है, ठीक है। तो प्रोडक्शन लॉग्स के अंदर स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है, हडूप फाइल से लिया और चले जाए। देयर इज नो स्ट्रीमिंग कॉन्टेक्स्ट। In the case of Spark, you have to create the streaming context, otherwise you just create the Spark context. Okay. One stack to rule them all. अच्छा, अब मैं आपको फटाफट बता दूं डॉकर्स के बारे में before we go to the tool, ठीक है? How many of you have used the virtual machine? So virtual machine क्या होती है कि let's say you have installed Windows, but you want to run Linux on that or Mac OS on that. So Windows is suited to the architecture जो कि आपको दिया हुआ है। So if you want to run an operating system on another operating system, then typically you use the virtual machine. If you have a good server machine जिनसे आप 3-4 virtual machine run करना चाहते हैं, तो typically you install the hypervisor tool. Hypervisor आप install करते हैं, it's a software for managing different virtual machines, and then you run the virtual machine. So each virtual machine is a separate, complete operating system. It's like a different machine. That is why it is called a machine. ये ऐसा है कि जैसे आपने एक पूरा अलग पीसी लिनक्स के साथ चल रहा है, तो आपने 3 वर्चुअल मशीन्स चला दी एक सर्वर पे और तीनों में लिनक्स अलग अलग चल रहा है। जब आप इस वीएम को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं विंडोज पे बैठा हूँ, आप कहोगे मैं तो लिनक्स में बैठा हूँ। VMs जी, मल्टीपल VMs अगर आपने चलानी है, हाइपरवाइजर तो अगर आपने एक VM भी चलाना तो आपको चाहिए होगा, जैसे ऑरेकल का वर्चुअल बॉक्स है। चला सकते हैं जी जी, एक सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा। तो वो सॉफ्टवेयर मशहूर है, एक तो VMware है, दूसरा ऑरेकल का वर्चुअल बॉक्स एनवायरनमेंट है। यस, लेकिन जो हमारे लैपटॉप्स हैं उसके ऊपर 2 VMs ही बड़ी मुश्किलों से चलेगी, क्योंकि VM will consume lot of resources, क्योंकि VM assumes कि भाई मेरा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, मुझे तो तुम रैम भी दे दो और हार्ड डिस्क भी दे दो। VM को इससे कोई गर्ज नहीं है कि विंडोज को अपना भी चाहिए। तो इसलिए अगर आप एक मशीन के ऊपर 2 VMs चला देंगे तो बस मशीन बैठ जाएगी।
अनलेस के वो कम से कम उसकी 16 GB रैम हो, SSD हो, 32 GB रैम हो, देन तो वो दौड़ेगा। 8 GB पे 2 VMs आप चलाएंगे तो सिस्टम बैठ जाएगा। सही है। तो दिस वाज नॉट कंपैटिबल विद व्हाट वी वांटेड टू डू। द प्रॉब्लम वाज कि मैं आपको लेट मी एक्सप्लेन टू यू द प्रॉब्लम ऑफ डेवऑप्स। डेवऑप्स का तो पता होगा आप लोगों को। कोई मसला नहीं है। Okay, let me just write it down here first. बिल्कुल होना चाहिए। This diploma is not for programmers. This diploma is for decision makers. And you are not expected to get extreme good hands-on here. Vision diploma का ये है कि आप लोग अगर मैनेजर्स हैं तो आप लोग अपने वहां पर जाकर इंडस्ट्री में मैनेजरियल लेवल पे चेंजेस लेकर आए to implement these technologies. इस डिप्लोमा का विजन ये है। डिप्लोमा का विजन ये नहीं है कि हम लोगों को डेटा साइंटिस्ट बनाएं, मतलब वो भी तो बनना चाहता है तो बन जाए, लेकिन एज यू आर ऑल प्रोफेशनल्स कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री, सो आई डोंट थिंक सो कि यू हैव द टाइम नाउ टू बिकम लाइक हार्डकोर डेटा साइंटिस्ट, अनलेस के कोई उस डोमेन में जा रहा है। तो आप लोगों का विजन ये है कि even if you don't have the CS background, it's not a problem. You are interested in data analytics, so you should bring a change in your industry. You will have to hire people for that. ये काम आपने सारा थोड़ी खुद करना है। नहीं तो ठीक है, लेकिन अब आप डिप्लोमा कर रहे हैं ना, आपने 4 महीने IBA से डिप्लोमा किया और ये डिप्लोमा बहुत एग्रेसिव और इंटेंसिव है। अगरचे इसमें हमसे गलतियां होती रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कभी छुट्टियां हो रही हैं, कभी कोर्स आउटलाइन से डिफाइन नहीं है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। दैट इज आवर प्रॉब्लम, हम जानते हैं। लेकिन जो हमारा जो विजन है वो ये है कि भाई जो पूरा एक टेक्नोलॉजी स्टैक है वो हमने सारा पढ़ाना है आपको। सिर्फ हम आपको BI तो नहीं सिखा रहे या सिर्फ मशीन लर्निंग तो नहीं सिखा रहे, हमने आपको प्रोग्रामिंग सिखाई, हमने आपको रैंगलिंग बताया, BI मशीन लर्निंग आप अभी देख रहे हैं, फिर हम आपको NoSQL डेटाबेसेस दिखा रहे हैं, फिर ये स्ट्रीमिंग की बात हो रही है, इसमें हम डेटा गवर्नेंस भी करेंगे, लेक्स का भी करेंगे। तो एक पूरा आपको एक वो देना है विजन कि एनालिटिक्स में क्या क्या चीजें चल रही हैं इस वक्त। डीप लर्निंग बस नहीं है, डीप लर्निंग जो कि हमारी इंडस्ट्री में भी उसका वो जी इंशाल्लाह वो मैंने बात की है। हाँ भाई, वो एक लेक्चर तैयार करने में पसीने छुड़ जाते हैं, क्योंकि मसला ये है कि हैंड्स ऑन जो है ना वो उसमें डीप लर्निंग का हैंड्स ऑन बहुत मुश्किल है। नेट से कोड तो मिल जाता है, लेकिन वो किसी ने प्रीवियस वर्जन्स पे काम किया होता है। जब हम उसको अपने लिए अडेप्ट करते हैं तो बहुत सारे एरर्स आते हैं। तो आजकल हम LSTM और इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तभी मुझे 3-4 एप्लीकेशंस बनानी है हैंड्स ऑन की। ये अच्छा, मैं आपको डेवऑप्स का सिनेरियो बता देता हूँ, ठीक है। डेवऑप्स का सिनेरियो ये है कि यहाँ पर लेट्स से कि ये कुछ लोग हैं, so they are very listen carefully, ठीक है। So what we call them, भाई वो इशाप असर पढ़नी होगी आप में से, ठीक है। टीम ऑफ डेवलपर्स जो नॉर्मल आपके सॉफ्टवेयर हाउस में डेवलपर्स हैं, ठीक है। सो दिस टीम ऑफ डेवलपर configures a system, configures an environment of programming. डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट वर्जन्स हैं, बड़ी मुशक्कत के साथ 3-4 PCs के ऊपर, not a cluster. They just figure out कि we need these softwares, these versions, these APIs, these tools for development, blah 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 blah, and they implement that.
ठीक है, चलो जी, हमने तो पहला प्रोटोटाइप बना लिया 3 महीने में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट कम्स फॉर टेस्टर्स, क्योंकि दे हैव टू नाउ टेस्ट द सिस्टम, ठीक है। सो what happens is के the developers give the software to testers, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आया? The testers do not have the environment of programming. Testers are also developers. Testers need to see the code. Code run करने का अब वो जो सारा environment है वो तो developers के PC पे develop हुआ था। अब वो फिर क्या होता है, फिर ये जो आपके what happens is के the testers go to the dev and tell them to configure the environment on their PCs. यानी टेस्टिंग डिपार्टमेंट की PCs पे आप तशरीफ लाएं और ये दोबारा से हमारा पूरा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आप कन्फिगर। हमने तो आपके सिस्टम को टेस्ट, आपने हमें कोड दे दिया, लेकिन हमारे पास तो वो चीजें कन्फिगर्ड ही नहीं है। अच्छा, पहले वो खुद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ठीक है, तो इन चक्रों में ना वो there's a possibility that टाइम भी लग रहा है और टेस्टर्स के खामखा के एरर्स आ रहे हैं। जैसे अगर आप अपने पीसी पे कोड लिखें, आप मुझे दें, तो मेरे पीसी पे कोई ना कोई एरर आ जाए। That happens. तो इसमें टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि टेस्टर्स के बाद पीसीज कौन से हैं भाई? कोई और डिफरेंट पीसीज होंगे, इनके पास डिफरेंट पीसीज थे। हाँ, डेवलपर्स को लैपटॉप दिया हुआ है, इनको डेस्कटॉप दिए हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम। अच्छा, अब ये हुआ कि बड़ी मुश्किलों से जी मुसीबत हल हुई, ठीक है, मसला हल हुआ। अब क्या हुआ, टेस्टर ने टेस्टिंग कर ली, अब वो वापस भेजेंगे, वो फिर करेंगे, फिर ये वापस भेजेंगे, अभी इसमें बॉल फेंकती जाएगी। अब जनाब टेस्टिंग हुई, अब क्या करना है? इसमें कितना टाइम लग गया? टेस्टिंग फेज में जनाब 15 दिन निकल गए। और डेवलपमेंट क्या हो रही है? ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाना था, उसमें 15 दिन हमारे जाया हो गए। जो काम यानी 1 दिन का था या 5 घंटे का काम था, उसमें जनाब 15 दिन निकल गए, रेड टेप की वजह से और ये कॉन्फ़िगरेशन एरर्स की वजह से। इस प्रॉब्लम को, और आगे फिर क्या हुआ, चलो टेस्ट हो गया, अब हमने उसको डिप्लॉय करना है। अच्छा, डिप्लॉयमेंट कहाँ होती है? डिप्लॉयमेंट तो एक अलग सर्वर पे होती है, टेस्टिंग पीसी पे डिप्लॉयमेंट तो नहीं होती ना। अब जैसे आईबीए मैंने कोई चीज डिप्लॉय करनी, आईबीए की वेबसाइट जो है वो तो डेटा सेंटर पे होस्टेड है। आईबीए की वेबसाइट मेरे पीसी पे तो होस्टेड नहीं हो सकती ना, क्या ख्याल है? अब वो दूसरा पीसी है, तो द डिप्लॉयमेंट पीसी इज सेपरेट। ये एक अलग मुसीबत खड़ी हो गई। फिर वही मसले वहां आएंगे। जब वो करते, उन्होंने कहा कि भाई इस मसले को हल करने के लिए आप ये करें कि भाई आप हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे दो, हम उस एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करके आपका सिस्टम टेस्ट करें। वही एनवायरनमेंट हम यहाँ पे भी करेंगे। अब जब आप हमें कोड देंगे, हम आपको 2 घंटे में बता देंगे आपके कोड में क्या बग्स हैं, रादर देन 5 दिन के बाद। इसी तरह जब डिप्लॉय करेंगे तो विद इन सेकंड्स डिप्लॉय होगा, एनवायरनमेंट सेम है। तो आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें जावा वर्जन दिस, जेवीएम वर्जन दिस, जेआरई वर्जन दिस, पाइथन वर्जन दिस, टेंसरफ्लो वर्जन दिस, वो सारी एनवायरनमेंट आप क्रिएट करके दें। तो इस काम को करने के लिए एक तरीका तो वर्चुअल मशीन था कि मैं एक वर्चुअल मशीन बना लूं जो एग्जैक्टली उसमें वही चीजें हों जो एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं। लेकिन चूंकि वर्चुअल मशीन बनाना एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि उसके अंदर आपको सॉरी बोल दैट ये, तो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए मुझे रिसोर्सेज, तो वी केम अप विद द आइडिया ऑफ कंटेनर्स क्या करते हैं कि यू गॉट द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन एन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टेड ऑफ द हाइपरवाइजर इंस्टॉल अ कंटेनर इंजन। अब जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, एपीआई कौन सी होगी, वो आप
हर कंटेनर में अलग अलग चलेंगी, लेकिन उसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो वही होगा जो होस्ट का है। सो कंटेनर की स्पीड में और इसकी स्पीड में कोई मैच नहीं है। दिस इज लाइक अ चीता, दिस इज लाइक एन एलिफेंट। समझ आ गई बात की? एंड I can have 50 containers running on one PC. They are not going to slow down the system. On the contrary, 2 virtual machines are going to pull down my system. So now everything becomes a container. My Java code, PySpark, Spark can run in its own container. Hadoop can run Spark running on Hadoop in its own container. Kafka running in its own container. Data in another container. तो जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसके छोटे छोटे कंटेनर्स बना के मैं कंटेनर्स को आपस में कम्युनिकेट करवा देता हूँ। अब मैंने कंटेनर एक लिया जो कि एक कंटेनर मेरा पाइथन का था, एक कंटेनर मेरा जावा का था, एक कंटेनर का था, या मैंने एक ही कंटेनर के अंदर पूरी इन्वायरमेंट बना दी कि इसमें जावा वर्जन 1 डालो, इसमें जेवीएम वर्जन ये डालो, पाइथन वर्जन ये डालो, इसमें फ्लास्क एपीआई ये वर्जन डालो, ब्ला 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 ब्ला, और पूरा कंटेनर बना के मैंने टेस्टिंग को दे दिया। कंटेनर उसके अंदर पूरा चल रहा है। अब वो कंटेनर के अंदर वो कोड खोलेंगे, उसको वही मॉडिफाई करके उनको एग्जीक्यूशन का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। समझ आ रही बात की? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कंटेनर। द मोस्ट फेमस कंटेनर कंपनी इज डॉकर। तो डॉकर इज द मोस्ट फेमस कंपनी जो कि ओपन सोर्स है, जो कंटेनराइजेशन को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो यू आर द क्लाइंट, हम सारे क्लाइंट बनेंगे डॉकर के। तो आई कैन, there are different containers. So if you open hub.docker.com, अभी ओपन करें hub.docker.com, डॉकर हब पे अपना अकाउंट बनाए अभी। हब DOCKER। डॉकर आईडी में नाम होगा ना हमारा? अब अपने स्पेसिफिक नाम बना ले, कोई भी नाम। डॉकर हब इज द रिपोजिटरी ऑफ ऑल द कंटेनर जो इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, आप अपना कोई भी डॉकर बनाएंगे तो वो आप डॉकर हब पे अपलोड कर दें, वो पूरी दुनिया उससे डॉकर को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकती है। सही है जी? भाई आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट की, लेट्स से आपने MongoDB का डॉकर बनाया। MongoDB का अपना डॉकर आ रहा है, Nginx जो वेब सर्वर है उसका अपना डॉकर आ रहा है, ठीक है, Node.js का अपना डॉकर आ रहा है। अब आपको Node.js इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप एक Node.js का डॉकर डाउनलोड करें, उसको चलाएंगे, Node.js चल जाएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि मैंने डॉकर से कम्युनिकेट कैसे करना। अब Node.js को डाउनलोड करना, उसका वर्जन देखना, ये आपकी टेंशन खत्म, वो डॉकर खुद ही हैंडल करेगा। और इसके अंदर भी these are the commands। अगर आप डॉकर हब से कोई डॉकर पुल करना चाहते हैं कि मुझे चाहिए, तो you use the pull command, and if you want to give something to docker hub, you use the push command कि मेरा डॉकर ले लो। रन करना है किसी कंटेनर को तो डॉकर रन, अगर एक कंटेनर बिल्ड करना है, बनाना है, तो डॉकर बिल्ड। सही है, इसमें भी ये क्लाइंट सर्वर है कि डॉकर डीमन है, which is the docker host। the docker daemon एक होता है that acts as the server, ठीक है, and I can have multiple containers as the clients। तो एक ही पीसी पे I will have multiple containers, कोई इशू नहीं है। 4-5 कंटेनर भी पैरेलल में चल रहे हो, आपकी स्पीड पे फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल रिसोर्सेज को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। ठीक है, और सिमिलरली इमेज पहले डाउनलोड होता है, फिर उसका कंटेनर एक इंस्टेंस होता है। इमेज इज लाइक अ क्लास और कंटेनर इज लाइक एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो जब आप डॉकर हब से चीजें डाउनलोड करेंगे, वो इमेज डाउनलोड करेंगे। सही है,
इमेज डाउनलोड करने के बाद फिर आप उसके बाद उसका कंटेनर एग्जीक्यूट कराएंगे तो वो आप दोस्तों मैंने Nginx वेब सर्वर का एक इमेज डाउनलोड किया, अब मैंने 2 सर्वर चलाने हैं तो मैंने 2 कंटेनर चला दिए, 2 Nginx चल रहे हैं, सही है। और ये उसका हिसाब किताब होता है रजिस्ट्री कि कौन सा कंटेनर चल रहा है, कितनी देर के लिए चला, उसका नाम क्या था, ब्ला ब्ला ब्ला। अब अगले सैटरडे को हम इसका हैंड्स ऑन वगैरह करेंगे, मैं आपको बता दूंगा आपने करना क्या है। आप लोग अपने लैपटॉप्स तो नहीं लेकर आते ना? डाउनलोड करें ना, सही रिक्वेस्ट है। अगर ये तो आप पहले से हाँ हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो थोड़ा सा भारी भी है। मैं आपको बता देता हूँ ये तो ये वही चीज है जो कि मैंने आपको बताई थी, मैं आपको सब ये दिखा देता हूँ। अच्छा, दिस इज डॉकर फॉर विंडोज। इसके अंदर जो है ना वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आ रहा था इसमें, तो लेकिन हमें आके करना पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली डॉकर फॉर विंडोज। तो इसके अंदर हम अदरवाइज हमें लिनक्स वर्चुअल मशीन पर सारा काम करना पड़ता। अब ये है कि हम जो भी काम करना चाहते हैं इसके अंदर वो चीजें सारी चल रही हैं, हम विंडोज के ऊपर ही हम सारे डॉकर्स का काम कर सकते हैं, कम से कम चीजों को सीखने के लिए, ठीक है। सो अभी तक हमने कौन कौन से कंटेनर्स रन किए, इमेजेस हमारे पास कौन कौन से हैं, वॉल्यूम्स क्या हैं। आप अपनी इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट हियर। तो अभी तो यू नीड टू इंस्टॉल ऑल दीज थिंग्स। आपकी अपनी एक गिटहब रिपोजिटरी होनी चाहिए, गिट इंस्टॉल करें आप, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करें, रिपोर्ट, ये सब आके यहाँ पे देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा जी। पहले आप कहीं नहीं जाएं। हाँ हाँ, ये मैं आपको तो बिलिंग भी बोलो सर, कैसे मिलेगा? नहीं नहीं भाई, तो ये मेरा अपना है जो कि रिपोजिटरी है, और अभी इतना कोई खास इसमें काम आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जो भी चीज आप डॉकर फॉर विंडोज पे आप जो भी काम करेंगे, एनवायरनमेंट्स बनाएंगे, कंटेनर्स बनाएंगे और कहेंगे भाई रिपोजिटरी में डाल दो, तो ऑनलाइन आपकी डॉकर हब की रिपोजिटरी में वो आके अपडेट हो जाएगा। सही है, ये कहानी है। और यहाँ से अब आप देखें जो मैं बताना चाहता, लेट्स से मैं कहता हूँ कि स्पार्क, सही है, या स्पार्क स्ट्रीमिंग। सो दिस इज, ये देखें ना, बिटनामी स्पार्क डॉकर इमेज। तो दिस इज अ वेरीफाइड पब्लिशर फ्रॉम डॉकर, या रियल टाइम स्ट्रीमिंग विद इलास्टिकसर्च, दिस इज समथिंग एल्स। बिटनामी का काफका का डॉकर भी पड़ा हुआ है, सही है। तो अब ये जो पहले हमारा हैसल था ना कि सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा डाउनलोड करो, अब वो हमारा हैसल खत्म हो गया है। अब हम डायरेक्टली कंटेनर्स को डाउनलोड करके इस्तेमाल करेंगे, उसमें सिस्टम चल रहा है, व्हेन यू एग्जीक्यूट द कंटेनर द सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स रनिंग। आ रही समझ में? तो दैट्स द थिंग। तो अब हमें करना ही होगा कि हमें ये सारी देखें ना, स्पार्क कॉन्फ़िगरेशन, रैंचर बाय रैंचर लैब, रैंचर का स्पार्क है। अब आप ये बिटनामी का पहले देखें, ये बिटनामी बाय वीएमवेयर, ठीक है। तो वीएमवेयर इज द बेसिकली हाइपरवाइजर कंपनी, और अब जो है ना वो डॉकर्स पे भी आ गए, शिफ्ट कर गए हैं, ठीक है। सो अपाची स्पार्क इज अ हाई परफॉर्मेंस इंजन, तो आपको पता चल गया है। ये देखें, ये आपने उसकी YML फाइल ली, YML मींस येट अनदर मॉडलिंग लैंग्वेज। तो ये YAML फाइल बेसिकली हम लोग बनाते हैं डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज का मतलब है कि वो पूरी की पूरी डॉकर की उसमें इनिशियलाइजेशन होती है। डॉकर कंपोज, अब हमने डॉकर बनाया,
हाँ, ये हाउ टू डिप्लॉय अपाची स्पार्क इन कुबरनेटिस। ये देखें, ये है डॉकर पुल वियतनामी स्पार्क लेटेस्ट। तो लेटेस्ट का मतलब है सबसे लेटेस्ट वर्जन पुल करके ले आओ, तो वो स्पार्क आपका पुल करके और आप फिर उसको ये बिल्ड करें इमेज को, और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करें तो वो आपको डॉकर चल जाएगा, स्पार्क चलना शुरू हो जाएगा। तो ये खैर हमें करके अब देखना पड़ेगा, तो हम इसको देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी के डॉकर्स फॉर विंडोज डाउनलोड करके रखना है। अगर आपका अपना लैपटॉप है तो डॉकर फॉर विंडोज डेस्कटॉप, इट्स द नेम इज डॉकर फॉर विंडोज डेस्कटॉप। हाँ, ये वाला जो है ना, दिस इज नॉट अ वर्चुअल मशीन। अब ये कर ये रहा है कि बेसिकली विंडोज के ऊपर इन्होंने वो चलाया हुआ है। अब इसकी आप अगर देखें, वो ये देखें, मेमोरी इज यूजिंग 150 मेगाबाइट्स और 130 और 140 मेगाबाइट्स, दैट्स नथिंग। 16 GB के अंदर तो कुछ भी नहीं है। डॉकर डेस्कटॉप जो इस वक्त चल रहा है, ये देखें, ये सब अलग अलग अपना डॉकर डेस्कटॉप के इंस्टेंसेस हैं। तो इधर यूजिंग डिफरेंट कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन इज जस्ट 140 मेगाबाइट्स। तो इफ इट वाज अ वर्चुअल मशीन इट वुड हैव बीन मच मोर। दिस इज द मेमोरी कंजम्पशन जो कि इस वक्त आ रही है आपके पास ना। तो क्रोम का आप देखें 380 MB है, 140। तो ये बेसिकली विंडोज के ऊपर ही पूरा एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डॉकर फॉर विंडोज, कि आप डॉकर चलाने का जो फैसिलिटी है वो विंडोज के ऊपर आप करें। वैसे तो पहले हम लिनक्स पे जाते थे या मैक पे जाते थे, विंडोज पे इतनी फैसिलिटी नहीं थी इस तरह से किसी एप्लीकेशन में रन करने की। विंडोज में चलाने के लिए हम क्या करते थे कि VM इंस्टॉल की विंडोज के ऊपर, VM के अंदर सारा डॉकर पे काम करते थे। अब इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। और इसको फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं। ये मैं स्लाइड्स वगैरह आज रात अपडेट करके फिर एक छोटी सी असाइनमेंट भी आप लोगों को दे दूंगा जो आज हमने पढ़ा है, ताकि आपका थोड़ा सा केस स्टडी के हिसाब से वो चीज सेटिंग हो जाए। लेकिन जिनके अगर आपने लैपटॉप्स ले आए तो बेहतर है, क्योंकि जो मशीन्स है ना यहाँ पे, वो नेटवर्क के हिसाब से इशू करेगी। यहाँ पे असल में नेटवर्क का कनेक्शन चाहिए होता है कि वो कनेक्ट करता है डॉकर एप्लीकेशन से ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे IBA के नेटवर्क के ऊपर वो अलाउ ना करे। तो अगर आपके पास अपने लैपटॉप्स हैं तो अपने लैपटॉप्स पे इंस्टॉल करके ले आए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें होगा एक बार आप घर पे जाके भी ट्राई आउट कर सकते हैं चीजों को। क्या ख्याल है? इसके डिफरेंट ट्यूटोरियल्स भी हैं, इंस्टॉलिंग डॉकर डेस्कटॉप और विंडोज, तो वो आप ट्यूटोरियल्स देख लें यूट्यूब पे। सो नेक्स्ट वीक से फिर हम डायरेक्टली जो है ना वो डॉकर की सारी प्रोग्रामिंग, बस कुछ लैब्स बनी है लेकिन अब हमने बेसिकली स्पार्क वगैरह पे काम करना है, ठीक है। चलें फिर, सही है।